Hello, my dear students. We discussed CA Foundation Jan 2025, Paper 1 Accounts, Question 1, Pura MCQs is the true or false, theory question as well as one question on subsidiary book. Correct. Now we discuss question 2 in this video. 10 मार्क के क्वेश्चन है, मतलब 20 मार्क हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, दूसरा 20 मार्क अभी वीडियो में डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 रीड करेंगे एंड विल डिस्कस हाउ टू सॉल्व इट, देन वी विल शो यू द सॉल्यूशन ऑल्सो. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. A firm purchased a second-hand machinery on 1st April 2021 for rupees 15 lakhs. Let's see करना क्या है. You are required to prepare machinery account for the year ended 31st March 2024. तो मशीनरी अकाउंट बनाना है. कौन से साल का मशीनरी अकाउंट बनाना है? मार्च. That is year ended 31st March 2024. That is the year for which you are supposed to do the machinery account. Where does its story start from? The story in this case starts from purchase of that machinery for purchase of this machinery for 15 lakhs on 1st April 2021. आगे रीड करते हैं. Subsequent to which 2 lakhs were spent on the repairs of the machinery and its installation. मतलब ये मशीनरी के ऊपर कितना खर्चा हो गया? 17 lakhs खर्चा हो गया. So this would appear in the machinery account debit side पे to bank account. 15 plus 2, 17 lakhs will come in the machinery account on 1st April 2021. हमको तो 23-24 का ही मशीनरी अकाउंट बनाना है. 31st मार्च एंडिंग मतलब 2023-24 का ही करना है. तो ये सब आप वर्किंग में कर सकते हैं एंड सीधा 21 साल का मशीनरी का लेजर अकाउंट बना सकते हैं. करेक्ट. अच्छा, दूसरा क्या बोला है? On 1st October 2021, another machinery was purchased for 9 lakhs and the cost of installing the new plant in a new plant is 20,000. ये हमारा फर्स्ट मशीन था. अब दूसरा मशीन खरीदा हमने. 9 lakhs plus 20,000 we have spent. जो दूसरा मशीन है that is for 9 lakh 20,000. दोनों का जो डेट ऑफ परचेज अलग है. एक 1st अप्रैल का है और एक 1st अक्टूबर का है. लेट्स रीड फर्दर. मतलब ये भी मशीनरी का डेबिट साइड पे आएगा टू बैंक अकाउंट 9 लाख 20,000 सेकेंड मशीनरी. बट ये हम लेजर नहीं बनाएंगे फॉर 21 शोड इन द वर्किंग. करेक्ट. नेक्स्ट, द फर्म ऑल्सो शिफ्टेड द machinery purchased on 1st April 2021 to new plant and incurred a freight of 10,000. Very very important. ये गूगली फेंका इन्होंने. ये खर्चा नहीं लेने का. क्यों? दिस इज अ रीलोकेशन एक्सपेंस. खरीदा कभी था? 1st अप्रैल को. तभी जो भी इंस्टॉलेशन, रिपेयर्स, लोकेशन मतलब कैरेज एंड ऑल दैट एक्सपेंस you can add. Once it is installed, then you shift it to another location. It is a relocation expense. So as per the accounting standard 10, relocation expense मशीनरी में कैपिटलाइज नहीं करना है. ये 10,000 ऐड नहीं करना है. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. I hope in the examination आपने गलती नहीं किया हुआ है. They adopted a policy of charging depreciation at 12% on diminishing balance method. The WDV मेथड फॉलो करना है. तो ये 17 lakhs पे आपको 12% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है पूरा 12 महीने के लिए फॉर द ईयर 21-22 एंड इसके ऊपर 12% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है बट 6 महीने के लिए फॉर द ईयर 21-22. बराबर. क्यों 6 महीना? अक्टूबर में खरीदा हुआ है तो 6 महीने का लेना है. करेक्ट. नेक्स्ट, ऑन 1st April 23 सीधा 1st April 23 में चले गए. मतलब 22-23 में आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा ऑन द फर्स्ट मशीन फॉर 12 महीना एंड ऑन द सेकेंड मशीन ऑल्सो फॉर 12 महीना. दोनों में 12 महीने का आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है. एज आई सेड हम वर्किंग में करेंगे बिकॉज हमको एग्जाम में 23-24 का लेजर करने बोला है तो वहां से वर्किंग से शुरू करेंगे. ठीक है. तो हमारा 1st अप्रैल में क्या स्टोरी है? It was decided to change the method of depreciation.
मतलब डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज कर दिया. क्या कर दिया इन्होंने डेप्रिसिएशन का मेथड? What is the method? What they were following? They were following diminishing method. Now what they have done? They have come into straight line method. On this date, the remaining useful life was assessed at 5 years for both the machine with no scrap value. मतलब जो भी WDV आएगा on 31st March 2023, that is 1st April 23, तो जो भी प्राइस आएगा that will be divided by 5 because there is no scrap value. So that WDV will be divided by 5 because we are expecting 5 years of life for that machine, both the machines. No scrap value. Whatever is a WDV, divide by 5 कर दो, आपको फिर 23-24 का depreciation आ जाएगा. Clear on it? आगे रीड करते हैं हम. 1st October 23 को the first machine became outdated and sold for 2,50,000. मतलब ये जो फर्स्ट मशीन हमने खरीदा था 17 lakhs में, उसका 21-22 का डेप्री आया रहेगा, 22-23 का डेप्री आया रहेगा on WDV मेथड. बट जो 23-24 का है वो SLM का डेप्री आया रहेगा फॉर 6 months बिकॉज 1st October द सेल हैज बीन डन. 6 महीने का डेप्री कर दो, WDV आ जाएगा. कंपेयर करो 2.5 लाख के साथ, फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस. दैट जर्नल एंट्री विल रिकॉर्ड इन द मशीनरी अकाउंट ऑफ 23-24. आगे देखते हैं. ऑन द सेम डेट अनदर मशीनरी वाज परचेज्ड फॉर 8,50,000. This is a third machine that they are purchasing. First and second, first is sold off, now the third machine they are purchasing. The estimated useful life of the machine is 10 years and the residual value मतलब scrap value is 30,000. Correct? So इसका डेप्री कैसे आएगा? 8,50,000 minus scrap value 30,000 divide by 10 years. तो 8,20,000 divide by 10 years 82,000 हो गया साल का डेप्री. और हमको 6 महीने का करना है तो 41,000 is the depreciation. Are we clear on it? You are required to prepare the machinery account for the year ended. So 23-24 का हमको machinery account बनाना है. I'll share the solution. How does the solution look like? In this, if you see here, I've done the working. So that working also I will show. आप देख रहे हैं पहला वाला केस में by balance brought down, सीधा मैंने बैलेंस लिख दिया है. वर्किंग से लेके आ गया 20,77,40504. ये सेल ऑफ मशीनरी का है. ऑब्वियसली जो सेल ऑफ मशीनरी का है तो वहां पर इफ यू सी हियर दिस इज अ सेल प्राइस 2.5 लाख रुपए का. तो हमने उसके बाद प्रॉफिट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया 6 महीने का, प्रॉफिट और लॉस हो गया. फिर नया मशीन खरीदा था 8.5 लाख का, तो फिर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया. द डेप्रिसिएशन फॉर दैट सेकेंड मशीन एंड थर्ड मशीन मिलके 1,93,205 है. बैलेंस कैरी डाउन इज द अमाउंट एंड वर्किंग नोट देख लीजिए. देखिए यहाँ पर 17 लाख का मशीन है एंड दूसरा मशीन हमने खरीदा था 1st October को 9,20,000, दैट इज 9 लाख प्लस 20,000. फिर हमने इसका डेप्रिसिएशन चार्ज किया. पहला मशीन पे 12% 12 महीना, दूसरे पे 12% फॉर 6 महीना. तो हमको डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ गया. देन वी गॉट द WDV ऑन 31st March. दूसरा साल का डेप्रिसिएशन चार्ज किया 12% पे, पूरा साल का चार्ज किया है. अमाउंट यू कैन सी. वी गॉट द WDV ऑन द 1st April 2023. अब हम फर्स्ट मशीन को बेचेंगे 6 महीने के बाद. उसका डेप्री कैसे करेंगे? जो WDV था डिवाइड बाय 5 बिकॉज 5 साल का लाइफ था, 6 महीना हमने कर दिया तो उसका WDV आया 11,84,832 लेस द सेलिंग प्राइस 2.5 लाख, तो लॉस हो गया 9,34,832. फिर नया मशीन खरीदा दैट इज थर्ड मशीन 8.5 लाख का. फिर हमने उन पे डेप्रिसिएशन किया. सेकेंड मशीन पे डेप्री कैसे किया? उसका जो WDV है डिवाइड बाय 5 कर दिया 12 महीना 152,205. तीसरा मशीन 41,000, वो तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था. So that is how the whole final answer. Clear on it? Got it? So that is why I said working important है. Working देख लीजिए तो पूरा काम. तो पहला वर्किंग पूरा करके then you do the ledger. Job will be clear on it. Hope it works. Thank you very much. Let's go on to the next question. ERS का है
तो मैंने बोला हर वीडियो में 20-20 मार्क का क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। यहाँ पर हम BRS में चले जाते हैं। लेट्स सी द एडजस्टमेंट गिवन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30 जून 2024 फॉर मेसर XYZ। तो 30 जून का एज ऑन 30 जून BRS बनाना है। क्या दिया हुआ है? द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक was overdrawn to the extent of 24,768। overdrawn मतलब it is a overdraft balance। तो हम अपना वर्किंग कर देंगे। जो शॉर्टकट हम करते हैं हम कैश बुक, दो साइड होता है, रिसीप्ट साइड, पेमेंट साइड, एंड पासबुक हमारा होता है विड्रॉवल साइड एंड डिपॉजिट साइड। 24,768 कहाँ आएगा? कैश बुक का पेमेंट साइड पे आएगा। इट इज अ ओवरड्रॉन बैलेंस, दैट साइड विल बिकम नेगेटिव, the neighbors पॉजिटिव हो जाएंगे एंड अदर साइड विल बी ऑपोजिट। ये माइनस है तो उसका नेबर था रिसीट, ऑपोजिट। तो दूसरा नेबर है विड्रॉवल, पॉजिटिव, एंड देन विड्रॉवल का नेबर है डिपॉजिट, ऑपोजिट साइन। ठीक है, बहुत काम फास्ट कर देगा और मिस्टेक भी नहीं होगा। तो मैं एग्जाम भी बता देता हूँ कौन सा लेस होगा, ऐड होगा। या हम पहला लिख देंगे यहाँ पर ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, और यू से क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक 24,768। नेक्स्ट वन हम रीड करते हैं। बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू 350 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक चार्जेस है तो वेर इट वुड हैव कम इन द पासबुक, विड्रॉवल साइड 350 के प्लस साइड पे, तो ऐड आइटम हो गया। नेक्स्ट में चलते हैं। चेक्स अमाउंटिंग टू 88,078 इशूड बिफोर 30 जून बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक। चेक इशू किया है तो वेर इट वुड हैव कम इन द कैश बुक। पेमेंट साइड पे आएगा 88,678 रुपीज कम इन द पेमेंट साइड। ऑब्वियसली इट्स अ लेस आइटम, तो लेस में चला गया। दैट इज द नेक्स्ट पार्ट। आगे देखते हैं। वन पेमेंट ऑफ 4590 recorded in the cash book as if there is, this is a good one, one payment of 4590 recorded in the cash book as if there is no bank column। पेमेंट किया है बट recorded in the cash book as if there is no bank column, मतलब they are saying बैंक कॉलम में आना चाहिए था बट उन्होंने ऐसा लिखा जैसे कि बैंक कॉलम ही नहीं। बैंक कॉलम था हमारे पास बट उन्होंने इसको इग्नोर करके लिख दिया। मतलब इट वुड हैव कम इन द पासबुक का विड्रॉवल साइड, it would have come in the passbook का withdrawal side as 4590, मतलब बैंक का एंट्री है जो आपने नहीं लिखा है 4590 का। तो दैट इज अ व्हाट टाइप ऑफ आइटम? ऐड आइटम, बिकॉज पासबुक में लिखा है, कैश बुक वाले ने गलती से कैश कॉलम में लिखा है, पासबुक वाले ने सही तरीके से लिखा है, ऐड आइटम हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग वेयर देयर इज अ चांसेस ऑफ मेकिंग मिस्टेक। The company paid 15,500 to a creditor and received a cash discount of 2%. The cashier erroneously entered the gross amount in the bank column of the cash book। मतलब क्या है? हमने पे किया 15,500 रुपया, मतलब बैंक वाले ने सही तरीके से लिख दिया। बैंक वाले ने सही तरीके से लिखा मतलब बैंक वाले ने सही तरीके से 15,500 लिख दिया। जो हमने पे किया बैंक वाले ने सही लिख दिया। हमारा जो कैशियर है उसने क्या किया? नेट अमाउंट नहीं लिखा, ग्रॉस अमाउंट लिख दिया। तो वेरी ऑब्वियसली इफ यू सी हियर 15,500 इज योर आफ्टर 2% है, बट ये इन्होंने गलती से उसको ग्रॉस समझ के लिख दिया। करेक्ट ना? सो एक्चुअली इसने क्या किया? 15,500 वाज अ नेट अमाउंट बट उसने डिस्काउंट माइनस किए बिना लिख दिया। तो कितना लिखा रहेगा? 15,816 लिखा रहेगा, because this is 98%। पर हमारा जो कैशियर है उसने 15,500 नेट अमाउंट भरा था, उसने उसको ग्रॉस बना के लिख दिया। तो he has written the gross amount, not the net amount. Correct? So what was the gross amount? How would I have got it? I would have said 100 is to be found, but 98% जो है 15,500 है, तो 100% कितना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपको 15,816 आएगा। हमारा कैशियर ने गलती से ग्रॉस अमाउंट लिखा है जबकि अमाउंट पेड इज ओनली 15,500। तो डिफरेंस कितना हो गया? देखो, प्लस 15,500 एंड माइनस 15,816, तो डिफरेंस ऑफ 316 नेगेटिव है, तो लेस आइटम हो गया 316, लेस आइटम हो गया 316। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम।
वेरी इंटरेस्टिंग हुआ ना, ध्यान से देख लेना. A debit of 5,600 appeared in the bank statement for an unpaid check. This is another place where people make mistake, which has been returned as marked out of date. So bank statement में there is a debit for an unpaid check, and the check has been redated by the customer and paid into the bank on 8 July. 8 July मतलब BRS डेट के बाद. बैंक डेबिट कभी करेगा? अगर बैंक ने, जब भी मैंने चेक डिपॉजिट किया तो बैंक ने मुझे क्रेडिट दिया, तभी वो डिसऑनर पे क्या करेगा? डेबिट करेगा. करेक्ट. बट हमने क्या किया है? हमने सिर्फ डिपॉजिट का एंट्री किया है. हमने क्या किया है? सिर्फ डिपॉजिट का 5,700 का एंट्री किया है. हमने डिसऑनर का एंट्री नहीं किया. बैंक ने डिपॉजिट का भी कर दिया और डिसऑनर का भी कर दिया, तो उधर नलीफाई हो गया. हमने सिर्फ डिपॉजिट का एंट्री किया, डिसऑनर का नहीं किया, तो इट बिकम्स एन ऐड आइटम. तो ऐड आइटम होगा 5,700. नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड, अमाउंट टू 45,789. चेक डिपॉजिटेड है, दिस इज अ वेरी सिंपल वन. तो कैश बुक का रिसीव साइड पे आएगा 45,789. so that is what type of item? Add item है. This is easy ones. Dividend of 1980 collected by the bank, not recorded in the cash book, easy one. तो कहाँ आएगा? पासबुक का डिपॉजिट साइड पे आएगा 1980. बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया है, हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, तो व्हाट टाइप ऑफ आइटम इट इज? एज यू कैन सी नेगेटिव साइन है, लेस आइटम हो गया. नेक्स्ट, दिस इज अ शॉर्टकट वी डू इन द क्लास नाउ, सो आई एम डूइंग इट फास्ट. An amount of 2340 wrongly credited by the bank to the company account for which no detail is available. बैंक ने क्या कर दिया? हमको गलती से 2340 का क्रेडिट दे दिया. अरे गलती है, हम कैश बुक में थोड़ी गलती करेगा. बैंक ने गलती किया, हमने गलती नहीं किया, तो बैंक का इसमें क्रेडिट है. हम गलती नहीं कर रहे तो हम नहीं करेंगे वो चीज. तो ये लेस आइटम है बिकॉज इट्स ऑन द नेगेटिव साइड, so it is a less item here. Next, on June 25, the credit of bank column cash book overcast by 6789. So cash book का credit side is overcast. So cash book का credit side जो है यहाँ पर है overcast है, मतलब cash book का payment side is overcast by 6789. 6789 से overcast है. ये कौन सा साइड पे है? प्लस साइन है, बट कौन सा साइड पे? नेगेटिव साइड पे. तो माइनस ऑफ प्लस इज माइनस, ऑब्वियसली नेगेटिव आइटम है, ये माइनस. होप इट वर्क्स. मेन जैसा मैंने बोला बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है. वन पेमेंट ऑफ 4590 रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम. आना चाहिए था बैंक कॉलम में, बट हमने वो कैश कॉलम में लिख दिया. हमने गलती की है, बैंक ने नहीं किया रहेगा, तो इसलिए बैंक का विड्रॉवल साइड पे 4590 लिखा है हमने, दैट्स अ प्लस आइटम. तो वो एक जगह है. दूसरा, 15,500 to a creditor received a cash discount. The cashier erroneously entered the gross amount in the bank column of the cash book. Gross amount मतलब inclusive of discount, तो 15,816 कैशियर ने लिखा है, बट बैंक वाले ने सही से लिख दिया 15,500, डिफरेंस ऑफ 316. Clear? So this is a net amount. This is important. What is the word used? Paid 15,500. भरा. It's a net amount ही भरेंगे हम. And that is the two things. And here another important transaction. Debit of 5,700 appeared in the bank statement for unpaid check. Unpaid check मतलब हमने चेक डिपॉजिट किया, वो अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, तो वो एंड डिसऑनर हो गया, तो बैंक ने डेबिट कर दिया. बैंक डेबिट कभी करेगा? अगर डिपॉजिट के टाइम क्रेडिट किया तो अभी डिसऑनर के टाइम डेबिट करेगा. तो बैंक कभी भी नहीं करता. हमने क्या किया रहेगा? सिर्फ डिपॉजिट का एंट्री किया, हमने पेमेंट का एंट्री, इसलिए वो ऐड आइटम आएगा, ऐड साइड पे. ठीक है. अब इसका सॉल्यूशन कैसे नजर आएगा? आई विल शेयर दैट पीपीटी विद यू. इफ यू सी हियर, so we have started with cash credit balance as per cash book. Overdraft है 24,768. पहला वाला बैंक चार्जेस ऐड आइटम था. दूसरा वाला चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड लेस आइटम था. तीसरा चेक इशूड बट प्रेजेंटेड रॉन्गली रिकॉर्डेड इन कैश बुक 4590. तीसरा वाला पेमेंट टू क्रेडिटेड रॉन्गली रिकॉर्डेड इन कैश बुक 316. देन ऐड आइटम था चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड
and not recorded in cash book 5,700. Fourth one again, the next one again, check deposit not presented 45,789. Next one is a less item, dividend collected by the bank, not recorded in cash book 1980. Then wrong credit by given by the bank, again less item. Then credit column of bank column overcast, that's again a less item 6789. And final आपका टोटल आ जाएगा यहाँ पर आउटर कॉलम you see 56,429, दोनों को ऐड कर दो 81,197. यहाँ पर देख लीजिए 1,01,03 नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पर ध्यान रखिए तो आपका बैलेंस नेगेटिव आएगा. ऑब्वियसली ये क्रेडिट है तो नीचे भी क्या होगा, क्रेडिट ही होगा. नीचे भी क्या होगा, क्रेडिट ही होगा. मतलब नीचे भी हम क्या लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक. मतलब it will become a normal balance. Very, very important. How much amount does it come to? 18,906 is the amount. Clear on it? Very much. Hope it helps. Next B Smart का अगली बार डिस्कस. For more updates, just keep in touch. Thank you.